So welcome back to the session of UPSC Science and Tech PYQ of 2019 for Civil Services Examination। 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक सेक्शन से अबाउट 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to communication technologies, what are the differences between LTE and VoLTE? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के रेफरेंस में LTE एंड वोल्ट के बिटवीन क्या डिफरेंस है? LTE means long term evolution and volt means voice over long term evolution। LTE एंड वोल्ट दोनों ही आप अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर मोबाइल नेटवर्क सिम नेटवर्क के साथ देख सकते हो। डिफरेंस नंबर 1, LTE is commonly marketed as 3G and volt is commonly marketed as 3G advanced। This is wrong because LTE and volt दोनों ही 4G के साथ मार्केटेड किए जा रहे हैं। Difference number two, LTE is data only technology and Volt is voice only technology। This is also wrong because Volt voice plus data only technology है। So correct answer is D, neither one nor two। So let's discuss in detail why statement one is incorrect। LTE is commonly marketed as 4G. Volt is a standard for high-speed wireless communication for mobile phones and data terminals, including IoT devices and wearables. It is not a 3G advance. Why statement 2 is incorrect? LTE is indeed a data-only technology. It carries voice as data packets but requires the network to fall back to 2G and 3G for voice calls. However, Volt is not a voice only. It allows both voice and data to be transmitted over the same 4G LTE network simultaneously without dropping the data speed. Question number 2. RNA interference technology or RNAi technology has gained popularity in last few years। Why? Last few years में RNA interference technology और RNAi technology ने पॉपुलैरिटी गेन किया है। बट व्हाट आर वेरियस रीजंस टू गेन पॉपुलैरिटी? Number one, it is used in developing gene silencing therapies। This is correct because gene silencing therapies को डेवलप करने में RNA interference टेक्नोलॉजी का important रोल रहा है। Second, it can be used in developing therapies for treatment of cancer। This is also correct because cancer treatment के लिए थेरेपी डेवलप करने में RNA interference टेक्नोलॉजी का important रोल रहा है। Next, it can be used to develop hormone replacement therapies। दिस इज रॉन्ग बिकॉज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज को डेवलप करने में आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट दैट आर रेजिस्टेंस टू वायरल पैथोजेंस। दिस इज करेक्ट बिकॉज वायरल पैथोजेंस के लिए ऐसे क्रॉप प्लांट जो रेजिस्ट कर सकते हैं, इस तरह के प्लांट को प्रोड्यूस करने में भी आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। सो करेक्ट आंसर इज ए। 1 2 and 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। मेनली रीजंस है, 1 to 4 रीजंस करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल mechanism। RNAi is a biological process where RNA molecule inhibit gene expressions or translation by neutralizing targeted mRNA molecule। Application, it is widely used in medicine such as cancer treatment and agriculture, developing virus resistance crop like the flavored sour tomato। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी आज वाइडली तरीके से मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की जा रही है। मेडिसिन पर्पज सच एज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वायरस रेजिस्टेंस क्रॉप डेवलप करने के लिए किए जा रहे हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट, दिस इज टिपिकली डन बाय गिविंग द एक्चुअल हार्मोन टू द पेशेंट, नॉट बाय इंटरफेयरिंग विद आरएनए। सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए एमआरएनए क्रिएट करता है। एमआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट राइबोसोम को मैसेज सेंड करता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। डीएनए कंप्राइजेज वेरियस जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर ट्रांसफर। जीन कैरेक्टर ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सभी जीन डीएनए के अंदर कंप्राइज होती हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3,
for the measurement estimation of which of the following are satellite images remote sensing data used. uh, कुछ ऑप्शंस गिवन है, इनमें से किस किस एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस और रिमोट सेंसिंग का यूज किया जा रहा है प्रेजेंट में? नंबर वन, क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। दिस इज करेक्ट बिकॉज आज स्पेसिफिक लोकेशन पर जो भी वेजिटेशन है वहां पर क्लोरोफिल कंटेंट कितना है, सैटेलाइट इमेजेस और रिमोट सेंसिंग के थ्रू इसको मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर राइस पैडीज के थ्रू कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, दिस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड थ्रू सैटेलाइट इमेज एंड रिमोट सेंसिंग। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, लैंड सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर लैंड सरफेस टेम्परेचर क्या है, इसको मेजर करने के लिए भी सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डाटा का यूज किया जाता है। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 ऑल इसके करेक्ट हैं। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। क्लोरोफिल रिमोट सेंसिंग डिटेक्ट द ग्रीननेस ऑफ वेजिटेशन यूजिंग द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। किसी भी वेजिटेशन के ग्रीननेस को डिटेक्ट करने के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। स्पेशली इसके लिए नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स का यूज किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर कैन डिटेक्ट एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन एंड CO2। मीथेन एंड CO2 का कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर का यूज किया जा सकता है। टेम्परेचर थर्मल इंफ्रारेड सेंसर्स आर यूज्ड टू मैप लैंड सरफेस टेम्परेचर्स। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are the reasons for occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogens in India? इंडिया में माइक्रोबियल पैथोजेंस के अंदर जिस तरह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑक्यूरेंस हो रहा है, इसके वेरियस रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, दिस इज रॉन्ग बिकॉज पीपल के अंदर अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है देन इट इज नॉट become reason for multi-drug resistance in microbial pathogens in India. Second, taking incorrect doses of antibiotics to cure disease. डिसीज को क्योर करने के लिए अगर एंटीबायोटिक डोजेज इनकरेक्ट वे में टेकिंग की जाती है देन इसकी वजह से माइक्रोबियल पैथोजेंस के अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस रेज हो सकते हैं। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक फार्मिंग, दिस इज करेक्ट बिकॉज लाइवस्टॉक फार्मिंग के अंदर अगर एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है देन इसके थ्रू भी माइक्रोबियल पैथोजेंस के अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं। मल्टीपल क्रोनिक डिसीज इन सम पीपल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज कुछ पीपल के अंदर अगर मल्टीपल क्रोनिक डिसीज रेज होते हैं, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इसके थ्रू माइक्रोबियल पैथोजेंस के अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस सिम्टम्स क्रिएट नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 and 3 इसके करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल why statement 1 and 4 are incorrect. Drug resistance is a property of microbes, not the human host genetics or other diseases. ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है ये ओनली माइक्रोब्स का प्रॉपर्टी होता है, ह्यूमन होस्ट जेनेटिक्स और अदर डिसीजेस का ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। वाई स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट? ओवरयूज, अंडरयूज एंड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल हस्बेंड्री are the primary drivers of antimicrobial resistance AMR. Systems of medicine in India. इंडिया में मेडिसिन सिस्टम क्या है? मेडिसिन आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। इंडिया में मेडिसिन को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मॉडर्न मेडिसिन सच एज एलोपैथी एंड ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव सिस्टम्स। In India, the traditional systems are often grouped under the acronyms Ayush, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy. इंडिया में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आयुष के अंडर एक्रोनिम किया गया है। आयुष मीन्स आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। Here is the breakdown of how they differ in philosophy, treatment and origin. Modern medicine or biomedicine. This system relies on evidence-based research, clinical trial and biological sciences. मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के अंदर एलोपैथी, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरस
सॉरी एंटीवायरल्स मेडिसिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर वन, एलोपैथी, द स्टैंडर्ड मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, इट ट्रीट्स सिम्टम्स एंड डिसीज यूजिंग ड्रग्स, सर्जरी और रेडिएशन। एलोपैथी मेडिकल सिस्टम का एक मॉडर्न स्टैंडर्ड है एंड एलोपैथी के थ्रू सिम्टम्स एंड डिसीजेस को ड्रग्स, सर्जरी और रेडिएशन के थ्रू ट्रीट किया जाता है। द फोकस इज ऑफन ऑन न्यूट्रलाइजिंग द कॉज ऑफ द डिसीज लाइक किलिंग बैक्टीरिया। डिसीज का जो भी कॉज होता है उसको न्यूट्रलाइज करना इसका मेन फोकस होता है, सच एज किलिंग बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स, स्पेसिफिक ड्रग्स यूज्ड ओनली टू किल और इनहिबिट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स कुछ स्पेसिफिक टाइप की ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए यूज की जाती हैं। Antivirals, specific drugs used to treat viral infections, for example, for the flu, herpes, or hepatitis. They do not the virus directly stop it from replicating. नेक्स्ट, आयुष सिस्टम जो कि ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव सिस्टम है। आयुष सिस्टम टेक अ होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटिंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। आयुष के अंदर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इन सभी का ओरिजिन कैसे हुआ, कोर फिलोसफी क्या है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर डिटेल गिवन है। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा का जो ओरिजिन हुआ है वो इंडिया में एंशिएंट टाइम में हुआ है। कोर फिलोसफी, बैलेंस ऑफ थ्री दोष, वात पित्त कफ। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, हर्बल मेडिसिन, डाइट, योगा एंड पंचकर्मा, ये इसके ट्रीटमेंट के मेथड है। नेक्स्ट, यूनानी, यूनानी इज ओरिजिन इन परसो अरेबिक। कोर फिलोसफी, बैलेंस ऑफ फोर ह्यूमर्स, ब्लड, Felgum, yellow bile, and black bile. Method of treatment uses herbal, mineral, and animal-based product. Emphasize regimental therapy, massage, exercise. Next, Siddha. Siddha also origin in South India, Tamil Nadu. Similar to Ayurveda, focus on 96 principal tattvas and the seven humors. Method of treatment uses herbs and minerals, including processed metals, to rejuvenate the body. Homeopathy originated in Germany in 18th century. Core philosophy, like cure like, a substance that causes symptoms in a healthy person can be cured them in sick persons. Method of treatment, extremely diluted substance in the form of small sugar globules. Naturopathy, global ancient, the healing power of nature. The body has inhale ability to heal itself without drugs. Non-invasive treatment होता है। Summary of the key differences. सभी मेडिसिन के बिटवीन क्या डिफरेंस होता है। अप्रोच टू डिसीज, एलोपैथी जनरली इंटरवेंशनल, इट एम्स फॉर द फास्ट रिस्पॉन्स टू एक्यूट इशू इन्फेक्शंस एंड इमरजेंसीज। आयुष अल्टरनेटिव जनरली प्रिवेंटिव एंड होलिस्टिक, इट ऑफन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड स्ट्रेंथिंग द ह्यूमन सिस्टम। यहाँ पर अदर भी कुछ डिफरेंसेस गिवन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। रेगुलेशन किस तरह से किया जाता है इन इंडिया, व्हाइल ऑल दीज प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी लाइसेंस्ड, इन सभी मेडिसिन के जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं लाइसेंस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एमबीबीएस फॉर एलोपैथी, बीएएमएस फॉर आयुर्वेदा। जब भी हम एमबीबीएस की बात करते हैं देन ये एलोपैथी के साथ कनेक्टेड है, बीएएमएस आयुर्वेदा के साथ कनेक्टिंग है। Question number 5. The word Denisovan is sometimes mentioned in the media in reference with reference to, correct answer is B, an early human species. न्यूज में डेनिसोवन वर्ड्स मेंशन होता है जो कि अर्ली ह्यूमन स्पीसीज से रिलेटेड है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। डेफिनेशन, डेनिसोवंस आर एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ आर्किक ह्यूमंस दैट लिव्ड अक्रॉस एशिया ड्यूरिंग द लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक। डेनिसोवंस कुछ एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट स्पीसीज और सब स्पीसीज हैं आर्किक ह्यूमन का जो कि लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के ड्यूरिंग एशिया में लिविंग करते थे। कॉन्टेक्स्ट, दे आर कजिन्स नॉट कजिन्स टू नियांडरथल्स, ये नियांडरथल्स के कजिन्स माने जाते थे। एविडेंस वाज फाउंड इन द डेनिसोवा केव इन साइबेरिया।
This was in the news in 2019 due to new fossil discoveries in Tibet. Question number 6. In the context of digital technologies for entertainment, consider the following statement. एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज की जा रही डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज AR एंड VR से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फॉर स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, इन ऑगमेंटेड रियलिटी AR a simulated environment is created and the physical world is completely shut out। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीटली शट आउट होता है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऐसा नहीं होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी में फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीटली शट आउट नहीं होता है। स्टेटमेंट 2, in virtual reality VR, image generated from computer are projected onto real life object or surrounding। वर्चुअल रियलिटी VR के अंदर इमेजेस कंप्यूटर जनरेटेड होती हैं और ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग में प्रोजेक्ट नहीं होती हैं बिकॉज इसमें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और रियल सराउंडिंग का यूज नहीं किया जाता है। ये सब कंप्यूटर जनरेटेड ही होते हैं। So statement 2 is also wrong. Statement 3. AR allow individual to be present in the world and transpose the experience using the camera of smartphone or PC। This is correct because AR के अंदर स्मार्टफोन और PC कैमरा का यूज किया जाता है एंड एक ऐसे वर्ल्ड में इंडिविजुअल को एडिटिंग का ऑप्शन गिवन किया जाता है जो कि एक गुड एक्सपीरियंस क्रिएटर्स को गिवन करता है। वी आर closes the world and transposes an individual providing complete immersion experience। This is also correct because VR एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करता है जिसमें कंप्लीट इमर्जन ऑफ एक्सपीरियंस फील करता है कोई भी क्रिएटर है। सो करेक्ट आंसर इज बी। 2 एंड 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। सो 3 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन इन डिटेल। Why statement 1 and 2 are swapped? In virtual reality VR, the physical world is shut out to create a simulated environment। वर्चुअल रियलिटी VR के अंदर फिजिकल वर्ल्ड सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए शट आउट होता है। इन ऑगमेंटेड रियलिटी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस ओवरलेड ऑन द रियल वर्ल्ड। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस रियल वर्ल्ड पर ओवरलेड की जाती हैं। Why statement 3 is correct? AR uses devices like a smartphone to augment the real world with digital layers। Statement 4 is correct. VR provide a fully immersive experience using headset, for example, that block out the real world। Detailed explanation। Uh, Question number 7. With reference to digital signature, consider the following statement। डिजिटल सिग्नेचर के रेफरेंस में यहाँ स्टेटमेंट गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। It is an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged। This statement is correct because digital signature एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए एंड ये इंश्योर करता है कि ओरिजिनल कंटेंट अनचेंज रहे। दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर एंड नॉट द डाटा इटसेल्फ। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये सेंडर के आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता ही है बट ये डाटा को भी इस्टेब्लिश करता है बट स्टेटमेंट में लिखा हुआ नॉट द डाटा इटसेल्फ, सो इट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3, इट यूजेज अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू साइन एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करता है। दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी। 1 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। Why statement 1 is correct? A digital signature ensures the integrity of the document। If any change is made to the document after signing, the signature becomes invalid। कोई भी डिजिटल सिग्नेचर जब किया जाता है देन ये डॉक्यूमेंट के इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। साइन करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी टाइप का चेंज किया जाता है देन सिग्नेचर इसका इनवैलिड हो जाता है। Why statement 2 is incorrect?
A digital signature establishes both the identity of the sender and fact that the data has not been tampered with integrity. Why statement 3 is correct? It relies on asymmetric cryptography. The sender uses a private key to sign and the receiver uses the sender's public key to verify. Question number 8. What is Sag9 protein that is often mentioned in news? Sag9 प्रोटीन क्या होता है जो फ्रिक्वेंटली न्यूज में सीन किया जाता है? इट इज मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। Sag9 प्रोटीन एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह वर्क करता है जो कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में यूज किया जाता है। So let's discuss in detail. What is it? Sag9 is an enzyme that act as a molecular seizure. Sag9 एक प्रोटीन होता है, एक एंजाइम होता है जो कि मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पर एक्ट करता है। How it works? It is part of the CRISPR-Cas9 system which allows scientists to cut DNA at specific locations to remove, add, or alter sections of the DNA sequence. Significance: it is the most efficient and precise method of gene editing currently available. Question number 9. With reference to hepatitis B, consider the following statement. Hepatitis B से related ये क्वेश्चन है एंड 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। दिस इज करेक्ट बिकॉज ये HIV की तरह ही ट्रांसमिट होता है। स्टेटमेंट 2, अनलाइक HIV हेपेटाइटिस बी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज हेपेटाइटिस बी का प्रेजेंट में वैक्सीन अवेलेबल है। Statement 3. Globally, the number of people infected with hepatitis B several times more than those infected with HIV. This statement is correct because present में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पीपल का नंबर HIV इन्फेक्टेड पीपल का नंबर से सेवरल टाइम्स मोर है। सो करेक्ट आंसर इज सी। 1 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल why statement 1 is correct. Both hepatitis B and HIV are a blood-borne virus. They are transmitted through contact with infected blood, semen or other body fluids. हेपेटाइटिस बी एंड HIV दोनों ही ब्लड बॉर्न वायरस हैं एंड दोनों ही इन्फेक्टेड ब्लड, सीमेन और अदर बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। Why statement 2 is incorrect? A safe and effective vaccine that offers 98 to 100% protection against hepatitis B has been available since 1982. There is currently no vaccine for HIV. प्रेजेंट में HIV के लिए कोई वैक्सीन नहीं है बट हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। Why statement 3 is correct? According to WHO data, about 296 million people are living with chronic hepatitis B, while approximately 38 million people are living with HIV. Question number 10. Which of the following activities can be performed by wearable technology? Wearable technologies के थ्रू कौन कौन सी एक्टिविटीज इनमें से परफॉर्म की जा सकती हैं? सच है डिटरमाइनिंग द स्लीपिंग पैटर्न ऑफ अ पर्सन, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, मेजरिंग द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन। तो करेक्ट आंसर है डी 1 2 3 सभी वेयरेबल टेक्नोलॉजीज के थ्रू आज ये एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। एक्टिविटी 1, मॉडर्न स्मार्ट वॉचेस यूज सेंसर टू मॉनिटर मूवमेंट एंड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी टू ट्रैक स्लीप स्टेजेस। एक्टिविटी 2, wearable hearing aid and hearables use advanced signal processing to assist those with hearing loss, often syncing directly with smartphone. Activity 3, most wearables use plethysmography sensor to measure heart rate. Question number 11. Which of the following reflect the most appropriate reason for the fear about the microbeads that are released into the environment? माइक्रोबीट्स जो एनवायरनमेंट में रिलीज किए जा रहे हैं इससे रिलेटेड मोस्ट अप्रोप्रिएट फियर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इज ए, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मैरिन इकोसिस्टम। माइक्रोबीट्स को मैरिन इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल कंसिडर किया जाता है। व्हाट आर माइक्रोबीट्स? माइक्रोबीट्स आर सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 1 mm in size used in exfoliating soaps and toothpaste। माइक्रोबीट्स कुछ सॉलिड प्लास्टिक
पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 1 mm का लेज होता है, एंड सोप्स एंड टूथपेस्ट को एक्सफोलिएटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। Why the fear? Because they are so small, they pass through a wastewater treatment plant and enter oceans. Marine life mistake them for food, leading to physical blockage and the entry of toxic chemical into our body. Question number 12. In the context of proposals to the use of hydrogen and the CNG as fuel for the buses in public transport, consider the following statement. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस में हाइड्रोजन यानी सीएनजी यूज करने के लिए प्रपोजल गिवन किया गया है, और प्रेजेंट में बिकॉज ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, बट 2026 में सीएनजी के अंडर हाइड्रोजन ब्लेंडिंग करके इसको एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है। एंड इसके क्या क्या इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। The main advantage of the use of hydrogen CNG is the elimination of carbon mono emissions. This is wrong because यहाँ पर elimination word लिखा हुआ है। कार्बन मोनो emissions को 100% eliminate नहीं कर सकता, only 70% तक eliminate करता है। So statement 1 is wrong. Statement 2. HCNG as fuel reduce carbon dioxide and hydrocarbon emissions. This is correct because HCNG कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, हाइड्रोकार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेटमेंट 3. हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस। बसेस में यूज किए जाने वाले सीएनजी के अंदर हाइड्रोजन ओनली 1/5 और 20% तक ही ब्लेंड किया जा सकता है। दिस इज करेक्ट। नंबर 4. HCNG मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। दिस इज रॉन्ग बिकॉज HCNG सीएनजी का कंपेयर में काफी एक्सपेंसिव होता है। लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। HCNG reduce carbon monoxide significantly by about 70%, but it does not completely eliminate it. Why statement 2 is correct? It reduces CO2 emissions and unburnt hydrocarbon emissions compared to regular CNG. Why statement 3 is correct? The typical blending ratio is 18 to 20% hydrogen by volume. Why statement 4 is incorrect? HCNG is currently more expensive to produce and distribute than standard CNG. Question number 13. Recently, scientists observed the merger of a giant black hole billions of light years away from the Earth. What is the significance of this observation? रिसेंटली साइंटिस्ट ने स्पेशली 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेजेंट का इंसिडेंट नहीं है। उस टाइम पर साइंटिस्ट ने जायंट ब्लैक होल के मर्जर को ऑब्जर्व किया, और ये मिलियंस बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे था अर्थ से। इसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं? करेक्ट आंसर इज बी, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। ऑब्जर्वेशन. The LIGO and Virgo detectors observed ripples in fabric of space-time caused by a violent collision of two black holes. Significance: these ripples are gravitational waves first predicted by Albert Einstein in 1916. Their detection confirms a major part of a general theory of relativity and allows scientists to study the universe in a completely new way. Question number 13. Why is there a great concern about the cyanobacteria or blue-green algae that are released into the environment? साइनोबैक्टीरिया जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा रहा है, इससे रिलेटेड ग्रेट कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे। नंबर 1, दे कैन कॉज द डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसका डिप्लीशन के लिए कॉज बन सकता है। They can release toxins that are harmful to aquatic life and humans. साइनोबैक्टीरिया ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। दिस इज राइट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेड जोन इन ओशंस। ओशंस में डेड जोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट। सो करेक्ट आंसर है डी। 1 2 3 सभी इसके करेक्ट हैं साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल oxygen depletion. When cyanobacteria bloom and then die,
Their decomposition by bacteria consume vast amount of destroyed oxygen. साइनोबैक्टीरिया ब्लूम होता है और उसके बाद उसका डेड होना होता है। जब इसका डेड पार्ट को कुछ बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग वास्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं टॉक्सिन। मैनी स्पीसीज रिलीज साइनोटॉक्सिन्स लाइक माइक्रोसाइंथिस which can kill fish and poison drinking water for humans। मैंने स्पीसीज यहाँ पर साइनोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि फिश को किल कर सकता है, ड्रिंकिंग वाटर को पॉइजन बना सकता है ह्यूमन के लिए। डेड जोन लार्ज स्केल ब्लूम्स लीड टू hypoxic conditions where no marine life can survive, creating a dead zone in coastal areas। Question number 15. The consumption of polished iodide is one of the main reasons for which of the deficiency of which of the following vitamins? Correct answer is vitamin B1 because people जो पॉलिश्ड राइस का कंजप्शन कर रहे हैं इसकी वजह से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो सकती है पीपल की बॉडी में। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस। पॉलिशिंग राइस रिमूव द आउटर लेयर brown and germ. This layer contains the majority of the grains thiamine और विटामिन B1। पॉलिशिंग राइस के अंदर आउटर लेयर राइस का रिमूव कर दिया जाता है। ये जो आउटर लेयर होता है इसमें ग्रेन्स थायमिन और विटामिन B1 कंटेन होता है। रिजल्ट हैवी कंजप्शन ऑफ पॉलिश्ड राइड विदाउट आउटर सोर्स ऑफ विटामिन B1 कैन लीड टू अ डिफिशियंसी डिजीज कॉल्ड बेरी which affect the nervous and cardiovascular system। पॉलिश्ड राइस का अगर हैवी कंजप्शन किया जाता है इससे ह्यूमन को विटामिन B1 सोर्स नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से डिफिशियंसी डिसीज नोन एज बेरी उसको हो सकता है। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम्स सीन इन द न्यूज। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसक्रिप्टोम टर्म न्यूज में समटाइम्स सीन किया जाता है। इट इज रिलेटेड टू द फुल रेंज ऑफ mRNA molecule expressed by an organism। Definition: the transcriptome is the complete set of all RNA molecule, including mRNA, rRNA, and tRNA, and other non-coding RNA, produced in one cell or a population of cells. Significance: unlike the genome, the transcriptome varies depending on environmental conditions and the developmental stage of the cell. It helps scientists understand which genes are active at a specific time. Question number 17. What are the advantages of implementing virtual private cloud? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और VPC को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? Number, it provide a private and secure environment within a public cloud. This is correct. It allow company to have total control over its virtual networking environment. This is also correct. It can be used to connect a company's own premises data center to a public cloud. This is also correct. तो करेक्ट आंसर है डी 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पेशली ये एडवांटेजेस गिवन है, ऑल एडवांटेज इसके करेक्ट है। यहाँ पर ये इसका डिटेल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन? कौन कौन सा डिसीज वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है? चिकन पॉक्स, यस, वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी, यस, हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। मलेरिया, नो, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड थ्रू वैक्सीन। मिजलेस, दिस इज करेक्ट, इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। करेक्ट आंसर इज ए। नोट, while a malaria vaccine was in trial in 2019, it was not yet part of a standard preventable immunization schedule globally at that time. Preventables: chickenpox, hepatitis B, and measles all have a highly effective standard vaccine। सभी के अंदर हाईली इफेक्टिव स्टैंडर्ड वैक्सीन होता है। चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी के लिए HBV वैक्सीन एंड मिजलेस के लिए MMR वैक्सीन अवेलेबल है। मलेरिया, in 2019 the RDS-S vaccine was being piloted
but malaria remained primarily managed through vector control and medication rather than routine vaccination. 2019 में आरडीएस एंड एस वैक्सीन मलेरिया के लिए पायलट की गई थी, बट ये फुली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।